Hello friends, how are you all? I hope you all must be fine and enjoying your studies through our YouTube channel. Students, we were discussing about ancient history, and in ancient history we have discussed sources of Indian ancient history and Stone Age. Fine? And now continuing our series, we will be studying about ancient history. In ancient history today we will be studying about one of the most modern kind of civilization. Modern or advanced or high-tech kind of civilization in that time when Stone Age was there. Fine. So it is the most oldest kind of civilization, but as we compare with India, with the rest of the world, it is the most advanced, modern, high-tech, whatever you can say. But when the other foreign countries were struggling for their civilization, we in India, that means at that time Indian subcontinent was there, was so much advanced civilization was there, and that was known as Harappa civilization, Harappa culture and Mohenjo-daro. Fine. So today we will be knowing more and more fascinating facts about Harappa culture and Mohenjo-daro. This civilization is very ancient. Just after the Neolithic age, Chalcolithic age, it is just according to that period it is there. But if we will be studying about the town planning, the kind of architect they were using, their lifestyles and so on, then slowly and steadily you will be very much amazed to listen and to study about that in that times, thousands of years ago, how these people have managed those things so effectively and so efficiently. So, without wasting our time, let's begin our journey to go back thousands of years back to know one of the most advanced civilization, the Harappan civilization. Actually, it is one of the Bronze Age civilization, okay, and at this very time, some of the traces, some of the evidences are being found that where this civilization was there. So, this arose is northwestern part of Indian subcontinent. Indian subcontinent stand for, at that very time, India was a huge country, yet it is a huge country, but so many countries like Pakistan and so other countries were also being a part of our country only. They was not, partition was not made. Fine. So Indian subcontinent, if you look at the western side, it was to the northwestern part, it was occupied. Fine. In 1921, Dayadam Sen, what happened, how this civilization has came to the existence and how we human being has came to know about it. Actually, there was at the time of the Britishers were there. At that time, they were planning to construct a railway line. Fine. They were planning to lay down the railway track on the land, and the employees who were working, the workers who were digging the ground and everything, they have found some of the bricks were there, and they were quite old, and they were strong enough. They were buried, they were burned. Bricks were being used. So they have shown it to the architect and engineer who were working over there. So Mr. Dayal Ram Sani was there that in 1921 he has seen that it is not a common brick like we use in our houses. It is, that brick is very much old, and slowly and steadily they have stopped that construction site on that very area, and they have सील इट, सील करते हैं किसी भी चीज को, सील कर रहे हैं कि ये तो हेरिटेज साइट हो सकती है। फिर उन्होंने क्या किया कि एविडेंसेस इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए, और फिर बहुत सारे साक्ष्य को ऐसे ऐसे मिलते गए जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस विकसित सभ्यता यहाँ पर वास करती थी, लोग यहाँ पर रहा करते थे। वो जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे थे उनके लिए तो वो एक आम पत्थर ही था, उसे वो ले आए और
कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा नहीं ये आम पत्थर नहीं, ये तो बहुत ही सदियों पुराना पत्थर है जो हम लोग कोइंसिडेंटली मिल गया करते हुए रेलवे लाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंटली था, लेकिन जब पता चला तो हिस्ट्री और भी अद्भुत होती गई। लेट्स सी हाउ this civilization has covered part of Punjab, Sindh, Gujarat, Rajasthan and western UP. This means this Harappan civilization, or we can say Indus Valley civilization or the Bronze Age civilization, ये हमें जो पंजाब का हमारा पूरा पार्ट है, सिंध उस टाइम तो खैर पाकिस्तान भी था, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट अब जो है हमारा पाकिस्तान में चला गया है, गुजरात का पार्ट, राजस्थान और कुछ सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी, ठीक है, मेरठ वगैरह में इससे कुछ ट्रेसेस और एविडेंसेस फाइंड होते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नियरली 2800 साइट हरप्पन साइट हैज बीन फाउंड, की कुछ ट्रेसेस है यहाँ पे भी मिल गया, अच्छा यहाँ पे भी लोग रहा करते होंगे, यहाँ पे किसी का कुछ पार्ट मिल रहा है, कहीं कुछ पोर्शन मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट द आर्कियोलॉजिस्ट trace out the things and gather the information. Some of the important areas are Lothal and Dhulavira in Gujarat, Kalibhangan in Rajasthan, Banawali in Hisar, Haryana. These kinds of questions arise in match the following. Match the following में क्या होता है, जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि एक साइड एरियाज देते हैं, जैसे राजस्थान दे दिया, हरियाणा, हिसार, गुजरात, तो वहाँ पे धुलावीरा, कालीबंगन और लोथल जैसी प्लेसेस दे दी। नाउ यू हैव टू मैच, ये राजस्थान में क्या हमें कालीबंगन मिला था, इस टाइप से मैच ऑफ फॉलोइंग में क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली ट्रेस आउट हो जाते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर आल्सो बीइंग कंसर्न्ड। फाइन, सो दिस वर द प्लेसेस वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड। और इस टाइम तक, मतलब जब तक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, तब तक पूरे विश्व में बहुत सारी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने स्टार्टअप कर दिया था ग्रो अप करना, बट कोई भी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो चलिए आगे जानते हैं मोर एंड मोर फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। Yes, we were discussing that apart from India, in western part, in that means in rest of the world also, different civilization have started growing up. So let's see what were those. The Tigrans Euphrates civilization in Mesopotamia. This was a civilization which was developing in Mesopotamia. The Nile Valley civilization in Egypt. Fine. In Egypt, Nile Valley civilization was growing up. The Huanghu civilization in China. These were the civilization in the other part of the country of the world which were being developing. And in India, Indus Valley civilization or the Harappan civilization was developing. This is mainly also known as Indus Valley civilization because this civilization was mainly found at the river side of Indus River. That's why it is known as Indus Valley civilization. Now, let's discuss some of the characteristics of these civilization. Like we have discussed in Stone Age, Paleolithic Age, Neolithic Age, how these civilization was there. वहाँ पे उन लोग की लाइफस्टाइल क्या होती थी, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो नई सिविलाइजेशन पनपी स्टार्ट हुई थी, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज हुआ करती थी। ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। बाय दिस टाइम, दैट मींस टिल ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मैन हैज स्टार्टेड लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। राइट, मतलब कि अब वो सिर्फ विलेजेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गए थे कि हमारा काम सिर्फ खेती बाड़ी करना है, हम खेती बाड़ी करेंगे, और वो विलेजेस तक कंस्ट्रक्टेड नहीं थे। टाउन्स और सिटीज में भी लोगों ने रहना स्टार्टअप कर दिया था। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आल्सो। पहले हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, कि हाउ द अर्ली मैन वाज डूइंग देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। वो लोग इरिगेशन करना, एग्रीकल्चर करना स्टार्टअप कर दिया था। लेकिन by the time of Bronze Age civilization, agricultural techniques has also been
used and many others like irrigation के लिए फैसिलिटी हो जाना और मतलब एग्रीकल्चर के लिए उन्हें अलग अलग तरीके अपनाना स्टार्टअप कर दिया था। अब जब एग्रीकल्चर अच्छे ढंग से होगा तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन भी होगा। उनकी जितनी भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेशक वो लोग खेती बाड़ी में लगे रहते थे लेकिन फ्रूट का प्रोडक्शन उतना वो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब सब कुछ अच्छे से टेक्निक भी इस्तेमाल होने लगी then the cultivation or the food production has also risen up. Fine. Development of written and spoken communication. इस टाइम तक आते आते मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीख लिया था। ऑब्वियसली वो हम लोग की जैसे आम भाषा नहीं लिखते थे, उस टाइम उसकी सिविलाइजेशन की जो भी लैंग्वेज रही होगी वो उन्होंने लिखना स्टार्टअप कर दिया था, चाहे वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो या उनकी जो भी लैंग्वेज थी उसमें। और कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे का जो दूर संचार का माध्यम होता है, बातचीत करना, एक दूसरे को रिटन लेटर लिखना, ये सारी चीजें स्टार्टअप हो गई थी। ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड कल्चर, धीरे धीरे जब इंसान विकसित होता जा रहा है, दिमाग हो रहा है, तो उनका जो आर्ट, उनकी संस्कृति, ये सब भी धीरे धीरे पनपने लगी और आगे बढ़ने लगी। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड रूल्स एंड लॉज, जैसे पहले क्या था कि सोसाइटी में बिल्कुल नोमैडिक लाइफ थी जी अर्ली मैन में, ठीक है, लेकिन जब हम सोसाइटी में रहने लगे, ठीक है, तो ये रूल्स रेगुलेशन, जो सोशल रिचुअल्स लॉज होते हैं कि भैया ये फैमिली है, वन पर्सन हैज टू गेट मैरिड, ये इनकी वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये चिल्ड्रन है, ये ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ये जो फैमिली का जो सिस्टम होता है, मैरिज कल्चर्स का जो सिस्टम होता है, सो मेनी अदर थिंग्स जो है दे हैव आल्सो स्टार्टेड inculcating at that very time. That means social जो values होती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या एक जो अटैचमेंट होती है अपनी फैमिली से, that has been started. पहले क्या था कि बस हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, हम शिकार कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, that's it. They were restricted and they should be fulfilling their basic requirement. Now the human being is developing, their needs are developing, requirements are developing, and slowly and steadily they are becoming more civilized. Social rules, laws बनाने की भी चोरी नहीं करनी है या अपराध नहीं करना है, ये फैमिली सिस्टम things have started developing. Government for enforcing laws and order, अब उनके पास सरकारें भी होने लगी थी, देखिए एक सुप्रीम पावर है, उसके थ्रू जितने भी सारे लोग होंगे वो उनको फॉलो करेंगे, they have to obey their orders, rules, and that person has to look after, take care of each and every requirement of its citizens or the countrymen. Okay, so जो ये सारी चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाना कि नियम का उल्लंघन नहीं करना है, ये सारी चीजें इस सिविलाइजेशन तक, मतलब जो ये सारी सिविलाइजेशन पनपना स्टार्ट की थी, उन्होंने ये सारी चीजें स्टार्टअप हो चुकी थी, ठीक है। चलिए अब इस सिविलाइजेशन के बारे में और आगे about the town planning and structure of Indus Valley civilization. If we talk about this civilization, there was a cathedral. This means that the town was like something this way in structure. In this upper part of the surface, जो higher class of the society, जैसे king और higher officers जो रहते हैं, वो लोग यहाँ करते थे, जिसको हम दुर्ग भी कहते हैं, और जो ये लोअर पार्ट हुआ अर्थ का, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज वगैरह होते थे उनके घर मिलते हैं, ठीक है। तो ये है कि दो टाइप के स्ट्रक्चर हुआ करता था। जो अपर बना होता था उसमें हायर सोसाइटी, किंग, क्वीन और उनकी पूरी रियासत होती थी, जो उनके ऑफिसर्स होते थे वो वहां रहते थे, और जो एम्प्लॉयज हुए, फार्मर्स हुए, आर्किटेक्ट हुए या जो भी काम करने वाले हुए, वो लोग इस एरिया में रहा करते होंगे, ठीक है। देन इज ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मीन्स कि ये जो इनकी टाउन प्लानिंग इतनी बेहतरीन थी उस टाइम में कि इनके जो घर होते थे या फिर रोड होते थे, जैसे हम लोग के यहाँ चौराहा होता है, इसको हम क्रॉसिंग वगैरह कहते हैं, वो रोड जो है आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते थे, कि मतलब ये घर वगैरह बने होते जैसे आज भी हैं, तो ये आपस में मतलब इट्स बिकम वेरी इजियर टू गो, ठीक है। कुछ व्हीकल पास आउट करना है, किसी को जाना है, कोई फंक्शन है, तो ये सारी ऐसे कि जो रोड है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करते थे, ठीक है। ये हुआ करता था कि उनका रोड के साइड उनका
बेहतरीन, मतलब रोड जो थी वो भी अच्छी खासी सीमेंटेड और ब्रिक्स के थ्रू बनी होती थी, और उन्होंने अच्छा खासा जिसको ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन कह सकते हैं, इस सारी चीजों पे भी अच्छा खासा वर्कआउट कर रखा था। मॉन्यूमेंट्स ये नहीं है कि लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हों या फिर मिट्टी के घरों में या फिर बिल्कुल हट बना के रह रहे हो। इट वॉज नथिंग लाइक दैट। जो लोग रहा करते थे वहां पे अच्छे घर मिले हैं, घरों के बीच में जैसे आंगन में कुएं तक मिले हैं लोगों को, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि मॉन्यूमेंट जो बने हैं वो भी अच्छी जो पकी हुई ब्रिक जो इस्तेमाल की गई है, वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है उनके घर या मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने में। ये जो किले वगैरह बने हुए हैं ये सब भी उनको बनाने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तभी तो आज इतने हजारों सालों के बाद भी हमें उनके अवशेष मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अगर वो सारी चीजें ऐसे नहीं होती तो हमें आज तक कोई एविडेंसेस नहीं मिल पाते, ठीक है। उसके बाद है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ ये मोहनजोदारो में फाइंड आउट हुआ है, और इसमें क्या है कि ऐसी प्लेस है जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और शायद किसी रिलीजियस पर्पस के लिए वहाँ के लोग इस चीजों का इस्तेमाल किया करते होंगे, और काफी अच्छा वेल मेंटेन है, मतलब कि अपने समय में वो रहा होगा उस टाइम में। और इसके अवशेष जो है हमें इस टाइप से मिलते हैं। ये ग्रेट बाथ के बाद कुछ चेंजिंग रूम भी मिले हैं, कि जैसे कि आफ्टर टेकिंग बाथ वन हैज टू चेंज देयर क्लोथ्स, देन द चेंजिंग रूम्स आर आल्सो बी मेड, फाइन। एंड दिस शोज कि या तो कुछ से रिचुअल पर्पसेस के लिए या फिर कुछ सोशल गैदरिंग वगैरह में इस टाइप के बाथ सिस्टम का उपयोग किया जाता होगा। ये भी हम लोग को जो ऊपर वाले जो रहने वाले प्लेसेस हैं कैथेड्रल में वहां पे मिले हुए हैं। अपॉन इट, जैसे कि हम लोग क्या छठ पूजा होती है इंडिया में, तो क्या है कि जो लेडीज होती हैं बहुत कुछ कैरी करके और पानी के बीच में खड़ी होती हैं, सूर्यदेव को अर्घ देती हैं सुबह और रात में, शाम को। तो उसमें क्या है, इस शायद उस टाइप का कुछ रहता होगा उस टाइम भी, कि मतलब ऐसा कुछ रिचुअल है कि यहाँ पे ग्रेट बाथ का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये है लार्ज टैंक है जहाँ पे ह्यूज वाटर कलेक्शन होता हो सकता है वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए उस चीज का इस्तेमाल करते हो, टैंक का सिस्टम, ठीक है। तो ये है टैंक भी हमें वहां से मिले हैं। ग्रेनी जिसको हम अंडा ग्रहण करते हैं, तो जैसे कि हम लोग टैंक में रख सकते हैं, ट्रक में रखते हैं, उस टाइप की ग्रेनीज वहां पे भी मिली हुई है। मतलब कि जो प्रोडक्शन वो लोग करते होंगे अपार्ट फ्रॉम देयर डेली कंजम्पशन, the production might be very huge, large amount for storing that grains. They have made these grains in which they used to collect their wheat, rice or whatever things they were growing upon. This shows that agriculture was practiced, and agriculture was not only practiced, not only prevailing, the agriculture was done in good quantity. That's why the production was high, and that's why there is a need of making these kind of things. Burn bricks, as we have discussed earlier, कि छोटे मोटे या कच्चे पत्थरों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पके हुए ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। Only then, after so many years, also we are able to study the history of Harappan civilization. ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि अभी देखिए बारिश आती है तो बड़े बड़े शहरों में क्या उनकी म्यूनिसिपैलिटीज कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, सबकी कलई खुल जाती है कि कैसे वो रोड पे पानी बिल्कुल हो जाता है, जगह जगह पानी ही पानी नजर आता है। तो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। तो इनका इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था कि जितने भी सारे लोग का जो घर का जो पानी निकल रहा है डोमेस्टिक पर्पसेस के थ्रू, वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता था शहर के बाहर। मतलब कि काफी नीट क्लीन हाइजीनिक ये लोग रहा करते थे कि जो सबका पानी जैसे कि अंडरग्राउंड नालियां बनती हैं उस टाइप में ऐसा था कि यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं और वो आगे जाके निकल जा रहा है शहर के बाहर। मतलब ये नहीं है कि गंदगी इधर उधर फैली हुई है। तो एट दैट वेरी टाइम द टाउन प्लानिंग वाज सो मच एडवांस। हेल्थ एंड हाइजीन, अभी देखिए जब यहाँ पे बाथ सिस्टम अलग से बना हुआ है, सबके घर में कुएं तक मिल रहे हैं, ग्रेनीज मिल रही हैं और ये ड्रेनेज सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस
क्लीन कंजीनियर एटमॉस्फेयर, हेल्थ हाइजीनिक एटमॉस्फेयर रहा होगा उस टाइम पे. तो दैट मीन्स इन such a long period of time ago, also the people of Harappan civilization was so much aware about cleanliness, drainage system, and agricultural techniques and so on. ब्रिक डॉक यार्ड मतलब कि यहाँ पे एक प्लेस में ये भी पाया गया कि जैसे कोई पोर्ट रहा होगा, जैसे कि हम लोग के यहाँ गोवा है, मुंबई है, सब पोर्ट का सिस्टम है, काम करते हैं. तो उसी टाइम के पोर्ट के प्लेसेस टाइप के एविडेंसेस मिले हैं वहां पर. और ये भी है कि जैसे कि कोई रिचुअल होती है तो एशेस तक मतलब राख तक वहां पे मिली है. तो हो सकता है जलाने दफनाने का काम होता हो उस टाइम. तो एशेस के एविडेंसेस वहां पर मिले हैं. तो ये डॉकयार्ड में ब्रिक में का कंस्ट्रक्टेड वो डॉकयार्ड भी मिला है. ठीक है. तो ये कुछ टाउन प्लानिंग थी, उनका स्ट्रक्चर था कि किस तरह से लोग रहा करते थे ऊपर के प्लेस पे. हाई सोसाइटी के लोग, राजा महाराजा वगैरह रहते थे और उन्होंने अपने सोसाइटी को पूरा कवर अप करके रखा हुआ था. नीचे फार्मर्स वगैरह लोग रहा करते थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे. उनकी टाउन प्लानिंग अच्छी थी, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे. बेशक ये लोग नीचे रहते थे लेकिन इनके पास अच्छे मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे, तभी हम लोगों को आज तक उनके अवशेष मिल रहे हैं. ग्रेड सिस्टम था, बाथ सिस्टम था, ड्रेनेज था, बर्न, सो मेनी थिंग्स वर देयर. और ये काफी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि उस टाइम तक ये सभ्यता कितने अच्छे ढंग से पनपी होगी, रही होगी और विकसित हुई होगी. Let's know more about learn how the agriculture was done in Harappan civilization. Mainly the areas which we have studied, that means the northwestern part where Punjab, Rajasthan and things like that areas are being found where fertile land is available. Fine. But at that very time राजस्थान भी वहां पे आता है. लेकिन अब देखिए राजस्थान में थार डेजर्ट है, ठीक है, और भी थोड़ा उतना अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो उतना सूटेबल लैंड वहां पर नहीं मिलती है. लेकिन उस टाइम पर वहां पे काफी अच्छी फर्टाइल लैंड रहा करती होगी, तभी वहां पे हमें ग्रेनीज मिली है, बहुत अच्छी टेक्निक्स मिली. तो मतलब कि उस समय पर वो बहुत ही उपजाऊ जमीन रही होगी. ठीक है. वुडन प्लॉट जो वो लोग खेती बाड़ी किया करते थे, शायद तक ये कयास लगाए जाते हैं कि वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे. Why? Because yet it was a Bronze Age civilization. Iron was not yet been discovered by them because not a single traces has been found that yes there was evidence of iron in it. Fine. And copper cannot be used for agricultural purposes because it is not that hard enough, isn't it? Because if we compare it with iron, iron is much more stronger as compared to copper. So it might be possible that the people of that very age were not aware of the iron. That's why they might be using only wooden plows and equipments which were made of wooden to do the agricultural activities. Flood plains, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे फ्लड आया है या फिर रिवर साइड एरिया है वहां पे इन लोगों की खेती बाड़ी हुआ करती थी. क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के या फिर हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो वो अभी देखिए पंजाब में फाइंड आउट हुआ है. तो पंजाब में तो है ही स्टेट जहाँ पे 5 नदियां बहती हैं और वो पाकिस्तान का भी एरिया है. तो वहां पे वो सारी नदियां होकर गुजरती हैं पाकिस्तान से ऑलमोस्ट. तो ये क्या है कि वो जहाँ पे पानी जहाँ पे अवेलेबल हो सफिशिएंट क्वांटिटी में वहां पे रहते थे तो एग्रीकल्चर करना आसान हो जाता है, सिंचाई करना इस टाइप में वो काफी इजीली काम हो जाता था. वीट, बार्ले, राइस एंड पीट ये मेन क्रॉप्स थी जो वो लोग उस टाइम पर ग्रो अप किया करते थे कि गेहूं उगाना, बाजरा उगाना, चावल उगाना, मटर उगाना, ये सब काम किया करते थे. कॉटन प्रोडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बाकी सारी कंट्रीज में सिविलाइजेशन पनप रही है और कॉटन की खेती ये आम खेती जैसा नहीं है कि यहाँ पे हो गया जैसे अनाज हो गया. अगर वो कॉटन की खेती कर रहे हैं दैट मीन्स दे वर मच अवेयर अबाउट द क्लोथ्स कि भाई कपास ही है तो उसे किस तरह से उसे थ्रेड बनाना है, थ्रेड को
थ्रेड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है कपड़े के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब वहां के लोगों को कॉटन प्रोडक्शन भी आता था, वो लोग कॉटन का प्रोडक्शन भी करते थे। और ग्रीक वालों ने इसको बहुत एक बड़ा अचीवमेंट माना है कि यस एट दैट वेरी टाइम दे वर आल्सो मच अवेयर अबाउट द कॉटन प्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टडी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कौन कौन से जानवर थे या एनिमल्स थे जिनको उन्होंने डोमेस्टिक या फिर अपने साथ रहना मुनासिब समझा। बैल, ऑक्सन का उन्होंने प्रयोग किया, भैंसे हुई, बफेलो, गोट, शेप, पिग, हॉर्स, ये सारी चीजें बताती हैं कि जो आज भी हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में जिसको हम लोग रखते हैं तो वो ही है बैल हो गया। बैल आई थिंक ये सब खेती के काम करने के लिए काम आते होंगे। बफेलोस, गोट, मिल्क, ये सब शिप, ये सब मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं। एंड एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस आर आल्सो बीइंग फाउंड एज ए, हो सकता है भी कैटाडिल वाले जो दुर्ग में रहने वाले जो राजा महाराजा हुआ करते थे या फिर जो थोड़े उनके राजा महाराजा नहीं तो उनकी जो हाई क्लास सोसाइटीज थे वो सब एलिफेंट्स वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि उनका हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था। ये नहीं है कि सिर्फ टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे हो, अपार्ट फ्रॉम इट उनका एग्रीकल्चर भी उतना ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, फर्टाइल लैंड हुआ करती थी और जितना भी मुनासिब हो सकता था उतना वो लोग ग्रो अप करते थे और आगे वाले आने वाले समय के लिए भी रखते थे। और उसके अलावा वो कॉटन प्रोडक्शन तक पहुंच चुके थे और कुछ एनिमल्स को भी उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में बना के अपने पास रखा हुआ था। तो चलिए आगे स्टडी अबाउट देयर टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। Agricultural surplus. How this agricultural surplus was there? Because techniques are being used to do the cultivation for agricultural purposes. Fine. Either it's bronze, it is already known as bronze age civilization, that means bronze equipment or copper equipment. Some equipments or wooden equipments they were using, they were advanced irrigation facilities also they have made. So agriculture was surplus, that means the cultivation was surplus because with the help of टेक्निक्स। ओके, आज भी हम लोग अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छे से ढंग से कर पाते हैं तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस मशीनरी इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। तो वही टाइम वहां पे भी उस टाइम का जो एडवांस चीजें हो रहा करती होंगी, दोस थिंग्स वर बीइंग यूज्ड एंड द कल्टीवेशन वाज डन। Then is bronze tools. Already it's the bronze age civilization. Then the tools and equipments which were being made using the bronze. Fine. So many equipments have been made. Then copper was also known क्योंकि ये भी फाइंड आउट हुआ है कि वो माइंस के थ्रू कॉपर को निकालना, उसको तराशना, उसको जो भी प्रोसेसेस होता है उसको यूज करना और फिर वो लोग कॉपर का भी इस्तेमाल करने लगे थे। मतलब ये माइंस के थ्रू निकालना करना, प्रोसेस करना, इतना वो लोग एडवांस पहुंच चुके थे, ठीक है। Apart from this, they were knowing spinning, weaving, bricklaying, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो लोग कॉटन का प्रोडक्शन करते थे। अब कॉटन यूं ही तो पहन नहीं लेंगे, तो उसके लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जो भी चाहिए होता है, जिस प्रोसेस को गुजरना होता है, वो सारी चीजें उन लोगों को अवेयर थी ताकि वो लोग वो पहनते थे। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि उनकी ब्रिक्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। दे यूज्ड टू यूज अ बर्न ब्रिक, तो मतलब कि ब्रिक का लें कि किस तरह से मॉन्यूमेंट अगर बनेगा यूं तो इसके बाद कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, कितना सीमेंट पड़ेगा, बोरन पड़ेगा या जो भी है उनका रेशियो, वो सब उनके बारे में उन लोगों को वहां के पता था या फिर लोगों ने धीरे धीरे उसके बारे में जान लिया था। ओनली देन दे वर एबल टू यूटिलाइज इट इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर। बोट मेकिंग सिर्फ यही नहीं है कि अपने टाउन तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं थे वो, दे वर हैविंग देयर relationship with the other parts of the country at farmers their trade is concerned। वो चीजों को import और export भी क्या करते थे to the rest of the world। और ये जब कोस्टल एरिया का जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान में, गुजरात के कुछ एरिया इन सब में, तो जहाँ पे इनका पोर्ट का सिस्टम था वहां पे उन्होंने बोट मेकिंग का भी काम किया है। क्योंकि हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए करते हो, अपनी कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हो, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वो लोग करते हो। बट
the traces of boat making have been found. That means the people were very much aware about the boat also. Pottery, terracotta figurines. Pottery मतलब कि जो कुम्हार की तरह मिट्टी के बर्तन बनाने होते हैं, उसको पकाकर इस्तेमाल करना होता है खाना पीना बनाने के लिए या फिर किसी चीज को स्टोर अप करने के लिए. तो ये सब जो पॉटर्स की जो व्हील होती है, दैट हैज आल्सो बीन फाउंड. और बहुत अच्छे अच्छे कह सकते हैं कि बर्तनों के रूप में या आर्टिक्राफ्ट के रूप में द थिंग्स हैव बीन फाउंड व्हिच आर मेड ऑफ potteries. Fine quality of pottery has been used. Fine. Apart from this, there are certain terracotta figurines have been also been found, which shows their architect and their creativity in making pictures and things like that. Jewelries of gold, silver, and precious stone. The people of that very time were fond of jewelry also, not only clothes, as we have discussed about cotton. मतलब कि जो वहाँ पे सुनार होते थे वो गोल्ड और ज्वेलरी का भी काम करते थे. और जो प्रीशियस स्टोन, आजकल के हम लोग प्रीशियस स्टोन जो है पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम प्रीशियस स्टोन का इस्तेमाल होना, गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल होना, ज्वेलरी का, ये सब भी हुआ करता था. कि मतलब अब ये सोचिए कि थोड़े से ही काल में कितनी सारी चीजें जो है बदल चुकी है. पहले वो नोमैटिक लाइफ से बस इधर से उधर विचरण करते रहना, कुछ मिल गया खा लिया, कहीं मिल गया सो लिए, बस इससे रिस्ट्रिक्टेड ना रह के एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी रहने लगे, खुद को अच्छे से रखने लगे, सोसाइटी इनको अच्छे से बना लिया, खुद को सजाने संवारने में भी लग गए कि भाई गोल्ड की ज्वेलरी होगी, स्टोन की प्रीशियस स्टोन्स हम पहनेंगे, और इस तरह की भी चीजें वो लोग सोचने लगे. इम्पोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान. इम्पोर्ट क्या करते थे? गोल्ड और सिल्वर का. ठीक है, तो ये बाहर की कंट्रीज से भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना चीजों को, ये सब चीजें जो है उन्होंने स्टार्टअप कर दी थी. कि उनका टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट में हमने ये सब भी जाना कि भाई ये ज्वेलरी पहन रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चों ने जो है वो टॉयज जो मिले हैं, तो जैसे कि हम लोग खेलते हैं, बच्चों क्या क्या है सारी चीजें, कहीं किचन सेट है, डिनर सेट है, डॉक्टर सेट है, ये सारी चीजें हैं. तो उस टाइम के बच्चे भी खेला करते होंगे, जो बड़ी वाली चीजें होती वही छोटी चीज. तो ये सारी चीजें ट्रेसेस जो बच्चों के खिलौने वगैरह मिलते हैं, उससे भी अंदाजा लगाते हैं, अच्छा बच्चे खेला करते थे तो अच्छा ऐसी चीजें रहा करती होंगी. और वो जैसे कि अभी भी वो गांव वगैरह में इस्तेमाल होता है, देखा होगा आप लोग ने, वो गेहूं पीसने का एक इक्विपमेंट होता है, पत्थर से स्टोन का बना होता है, और उससे गेहूं को पीसा जाता है. तो ये सारी चीजें भी वहां पे मिली है कि मतलब लोग इतना एडवांस अब हो चुके थे कि इस चीजें की सिविलाइजेशन की तरफ वो धीरे धीरे रुख करने लगे थे. चाहे उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल किया हो, कॉपर का इस्तेमाल किया हो, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया हो, अपने दिमाग को उन्होंने बहुत चलाया था, इतनी सारी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली, एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया, ज्वेलरी बनाने लगे, पहनने लगे, सड़कें इतनी अच्छी बना ली, और टाउन प्लानिंग इतनी लाजवाब थी, बाथ सिस्टम था, ठीक है, फैमिली का सिस्टम था, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाने लगे कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस दायरे में अगर रहना है तो आप सिविलाइज्ड हो, उसका हमें उल्लंघन नहीं करना है. जिससे एक कह सकते हैं एक अच्छा सामाजिक तत्व जिसको कह सकते हैं, ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड सिविलाइज्ड सोसाइटी were being found at that very age. Fine. I hope you have understood it and enjoyed your journey to know much about these olden people, the olden civilization. We will be continuing further to know more and more about this civilization in our next upcoming lecture. By that time, keep watching. If you like the channel, subscribe it. If you understood the chapter, explain, happy with my efforts, then please do write your comments, like it, share it. It all boosts up our morals so that we all can be working harder and harder so that we can satisfy you people. Thank you very much. Thanks for watching.